मैंने इसका उल्टा किया, मैंने कोशिश की कि मैं ऐसा कुछ ना करूं कि मुझे लोग याद रखें। करेक्ट। और मैं वही करूं जो ये स्क्रिप्ट करवा रही है और करवाना चाहती है। किसी को याद नहीं उस पिक्चर के डायलॉग, और यही मतलब मेरा सक्सेस है, मेरी विक्ट्री है। राइट। क्योंकि मेरा वही ब्रीफ था यार। मेरी राइटिंग का कितना कंट्रीब्यूशन उसमें पता नहीं, क्योंकि एक तो हिट रीमेक थी। ऑफ कोर्स, यस। वो हमारे डायरेक्टर हैं सेलेस कोलानो, उनकी लिखी हुई फिल्म है जो बहुत चली थी साउथ। मेरे लिए जितना भी डेप्थ आता है और जितना फिर एक्स्ट्रापोलेशन आता है, विजुअल राइट डिपिक्शन आता है किसी कहानी का, वो सब कुछ वर्ड्स से आता है। वर्ड्स ही मुझे डायरेक्ट करते हैं। Hi everyone, this is Kunal Kothari. You're watching me on IWM Buzz, and sitting with me is someone who's crazy enough to be even thinking and directing a concept like Crazy. That would be apt. Of course, it's none other than the director of Crazy, Girish Kohli. Hi. Hi. So, right away I'll start with something because it's very fascinating to me. You obviously have written some of the fine films lately, the likes of Mom, the likes of Kesari, and all that. My question is that when you write something, it's obviously a very pure story. You're talking about a protagonist and multiple characters, and then there is something woven around it, right? But when you see the execution, it's obviously different. The execution of Kesari was very commercial, obviously. And here you are with Crazy, it's a very different world altogether in terms of an execution. So my question is, how much does that impact your writing process? Now that you see that your words are translated into something different in different ways, and now you are. बहुत अच्छा सवाल है। See, when there are two kinds of writing for me. One is commissioned writing, where I'm asked to write something. The other is called spec writing, speculative writing, where I'm writing something that I want to tell, I want to say. तो जब मैं commissioned writing कर रहा हूँ, उसमें the form is really given to me. Okay. It is said कि हमारी फिल्म का ये बजट होगा, ये इस तरीके की पिक्चर होगी, इस तरीके के, कभी कभी तो एक्टर्स भी डिसाइडेड होते हैं। Of course, yeah. तो आपको उनके लिए लिखना है। So at that time you have to be malleable enough. वो भी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्राफ्ट है, कमीशन राइटिंग। तो उस समय पे मैं अडेप्ट करता हूँ अपने आप को और उस फॉर्म को एम्ब्रेस करता हूँ, बिल्कुल उसको समझने की कोशिश करता हूँ, एंड देन आई राइट अकॉर्डिंगली। व्हेन इट So yes, you are right. The writing and the style does get impacted slightly. When I'm writing a story like Crazy, I like it to be, of course, within the form that the story needs. That every script will decide its own syntax and form. Correct. जो eventually आएगा screen पे. But I also like something of my personality to be in my writing. So वो भी एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर होता है, जिससे वो चेंज होती है, जो मैं कमीशन राइटिंग में कम लाता हूँ अपने आप को। राइट। एंड ऑन सिमिलर लाइंस, डू यू फील, ऑब्वियसली आई एम अज्यूमिंग यू वुड फील अ लॉट मोर लिबरल, राइट? जब आप खुद का एक एस्पेक्ट लेके आते हो, यू ब्रिंग योर ओन फ्लेवर to something like Crazy, and I'm not even talking about the part that you're directing it, because that's a different ball game altogether. In terms of the writing process, do you feel much more liberal? Because and it's not to say कि वहाँ commercial में नहीं लगता, but यहाँ पे शायद ज़्यादा लगता होगा. Do you feel anything like that? Of course. You asking if I feel liberated? Yes, of course. Yes. So I'll agree with that. Definitely, when you are writing something जहाँ पे अभी तक कोई भी limitations नहीं है, कोई expectations नहीं है, आप अपने लिए लिख रहे हो, राइट, अपने कमरे में बैठ के, बिल्कुल, तो why will you hold yourself back? And I did not. I have held no punches back in this film. True. Which has allowed me to innovate and allowed me to arrive at certain forms of storytelling that I would never do in my commission writing or other films that I'm making. Absolutely. Super. And again, जैसे मैंने अभिमन्यु वाला song देखा, and I'm sure everybody seen it, loving it. They're not just the song, but the teaser, the trailer. It's an obvious attempt to go crazy, so to speak, to go different, to present something, right? But whenever whatever थोड़े बहुत cinephiles होते हैं, उनका immediate होता है कि it looks very much in a good way. I'm saying, not in a bad way. It looks very much like Quentin Tarantino, or probably you can say like a Wes Anderson kind of styling.
even to an extent David Fincher, and I mean in a good way. So my question is not कि you क्यों ऐसा लग रहा है, but when you're writing or when you're creating a world which is so different and you're creating something which is so different from the Indian audiences, how is it easier to fall into the pit of making sure that कि मैं वो line cross ना करूँ जहाँ पे लोग सिर्फ compare करना शुरू करें and ये बोले कि सिर्फ उसके जैसा लग रहा है? मैं तो ये सब सोच भी नहीं रहा था. See, I am first and foremost a writer. Okay, I'm also a kind of a poet. I do my own kind of poetry. I call myself an urban poet. क्योंकि मेरी कोई लैंग्वेज इतनी रिच नहीं है या फ्लैम्बॉयंट नहीं है, मे बी एलिगेंट भी नहीं, बट इट डज द जॉब. जो मेरी पोइट्री है उसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है. सो मेरे लिए जितना भी डेप्थ आता है और जितना फिर एक्स्ट्रापोलेशन आता है, विजुअल डिपिक्शन आता है किसी कहानी का, वो सब कुछ वर्ड्स से आता है. वर्ड्स ही मुझे डायरेक्ट करते हैं. तो क्रेजी के लिए भी ऐसा ही था. मुझे ऐसा लगा कि एक ग्रे कैरेक्टर की कहानी है, तो इसका विजुअल डिपिक्शन जितना ग्रे हो उतना शायद सही लगेगा. हो सकता है गलत हूँ मैं, लेकिन मेरा कन्विक्शन था उसमें कि यही सही है. राइट. तो मैंने एक ग्रे और फ्लॉड कैरेक्टर को एक ग्रे सूट में डाला, एक ग्रे गाड़ी में डाला, बिल्कुल, उसको ग्रे बाल दिए और टेम्पलेट ही वो बन गया पूरा. उसको मोनोक्रोमैटिक फील दिया फिल्म को, ग्रे कंक्रीट पे छोड़ दिया. मुझे ज़्यादा एक्साइटिंग लगा टू if the heat is on this guy, which it was in a way. When you see the film, you'll realize that he is in circumstances where the heat is on him. Okay, he is on tender hooks, and he is in crisis. तो और सूरज एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है मेरी फिल्म. शायद ट्रेलर में डायलॉग भी है, सूरज डूब रहा है डॉक्टर साहब. हाँ, तो मेरे लिए तो कमाल डायलॉग है और बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है. So he's in a race against time, and his competitor is the sun. Okay, so again that is a symbol of heat. Of course, yes. तो वो heat, वो yellowness, वो dryness भी मुझे फिल्म में चाहिए थी. मुझे greenery नहीं चाहिए थी, मुझे humidity नहीं चाहिए थी, मुझे wetness नहीं चाहिए थी. और wetness भी एक point पे आती है फिल्म में जो एक बहुत ही poetic justice का काम करती है. Right. तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के मैंने डिज़ाइन किया. मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि इंटरनेशनल लगे या फिंचर की तरह लगे या वेस एंडरसन या टेरेंटिनो साहब. तो सब गुरु लोग हैं यार. आई एम श्योर वो मेरे से 10 गुना ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन मैंने इतना सोचा. That is fabulous. It's actually so fascinating and fabulous because it also speaks for itself कि हम कहीं ना कहीं से इंस्पायर होते हैं, बट ज़रूरी नहीं होता कि हम एक बंदे से या एक चीज़ से ही इंस्पायर होते हैं. It's all about executing whatever you have in your mind. हाँ, इंस्पिरेशन तो आई थिंक अगर जेन्युइन हो, ट्रू हो ना, तो आपको याद भी नहीं रहता कब आया, प्रिसाइसली कहाँ से आया. राइट. आपको तो डिज़ाइन और मैकिनेशंस याद रह जाते हैं क्योंकि वो इंटेंशनली किए गए. तो जो जेन्युइन इंस्पिरेशन था इस फिल्म के विजुअल पोर्ट्रेयल का, वो तो शायद याद भी नहीं होगा मुझे क्या था. करेक्ट. लेकिन ये सब चीज़ें याद है क्योंकि ये बैठ के पेज घुमाए गए हैं. सुपर. एंड नेक्स्ट अनदर थिंग कि जैसे मैंने बोला कि ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव डन अ लॉट ऑफ, यू आल्सो डायरेक्टेड अ शॉर्ट फिल्म, तो वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे. बट द राइटिंग ऑफ केसरी एंड मॉम स्पेसिफिकली, इट रीप्ड रिवॉर्ड्स, इट रीप्ड कमर्शियल रिवॉर्ड्स, जो ऑब्वियसली वर्क्स वंडर्स फॉर अ करियर, अ राइटर्स करियर, बिकॉज ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटी. What was it, do you feel, that the box office failure of Hit maybe had left a learning for you in a way कि you realize कि ठीक है, अगर मेरी राइटिंग अगर कहीं कोई गलत हुई है तो शायद यहाँ गलत हुई थी. यार मेरी राइटिंग का कितना कंट्रीब्यूशन है उसमें पता नहीं, क्योंकि एक तो हिट रीमेक थी. ऑफ कोर्स, यस. वो हमारे डायरेक्टर हैं सेलेस कोलानू, उनकी लिखी हुई फिल्म है जो बहुत चली थी साउथ. बिल्कुल, या इट हैड मल्टीपल. और मैंने भी देखी थी तो मुझे काफ़ी नयापन लगा था उस फिल्म में. मुझसे जो काम मांगा गया था, अगेन कमीशन राइटिंग थी. यस. बहुत ही सिंपल सा ब्रीफ था सेलेस सर का मुझे कि गिरीश मुझे ऐसे डायलॉग्स चाहिए जो किसी को याद ना रहे.
ये पहली बार किसी ने बोला था, मतलब लोग पैसा देते हैं डायलॉग लिखने के लिए, उल्टा होता है। हाँ कि ऐसा कुछ लिखो कि यार सबको याद रह जाए, मतलब कुछ यादगार लिखो, कुछ तोड़ो फोड़ो लिखो। बट ही वॉज वेरी क्लियर कि कुछ भी ऐसा मत लिखना जो याद रहे, क्योंकि इसका मतलब वो फिल्मी है। क्योंकि असलियत में जिस तरीके से हम बात करते हैं वो चीज़ें थोड़ी ना कोई भारी नहीं होती। करेक्ट। तो आई थिंक मैंने अपना ब्रीफ फॉलो किया, मेरे डायरेक्टर खुश थे मेरे डायलॉग्स से, मेरा काम उतना ही था। शायद किसी को याद नहीं उस पिक्चर के डायलॉग, और यही मतलब मेरा सक्सेस है, मेरी विक्ट्री है, राइट। क्योंकि मेरा वही ब्रीफ था। तो इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता था फिल्म को बेहतर करने के लिए मुझे नहीं पता। राइट। इतनी कुछ खास लर्निंग नहीं है मेरी, हाँ, लेकिन मेरे दोस्त बहुत अच्छे बने उस फिल्म से, राइट। रिश्ते बहुत अच्छे बने, तो मुझे बहुत कुछ मिला भी है उस फिल्म से। Super, super. And again, now coming to the part of direction. Okay, you have full-fledged first motion picture film out there up for release. Already talking, in the best way. सारी की सारी अच्छी चीजें हो जा रही है. What is? I'm not asking the obvious question के challenges क्या थे. I'm sure 1000 challenges होंगे. वो सब first time directors के होते हैं. But my question is that when you finally had the green light of now I'm going to direct this. What was it that you brought to the table in your own mind कि ये मैं यहाँ पे stand out करूँगा as a first time director despite whatever the external factors कितना भी उसको affect करे या ना करे? मुझे लगता है यही एक चीज़ है जो मैंने नहीं सोची। Okay. मैंने इसको बहुत ही मतलब इंटेंशनली इसको अपने आप से जुदा रखा इस थॉट को, क्योंकि मुझे ऐसा लगा ये मैं आ गया ना बीच में तो ये पिक्चर बिगड़ जाएगी। नाइस, कि मैं इसमें से क्या गेन कर सकता हूँ या मुझे क्या चाहिए, मैं क्या करूँ कि लोग मुझे याद रखें। ये मेरी पूरी स्ट्रगल ही थी कि ये मैं को हटाना है। राइट। और ये आता रहता था और मुझे अवेयर रहना पड़ता था, मुझे इससे लड़ते रहना पड़ता था कि ये नहीं आना चाहिए बीच में। तो कॉन्ट्ररी टू व्हाट यू आर आस्किंग, मैंने इसका उल्टा किया। मैंने कोशिश की कि मैं ऐसा कुछ ना करूं कि मुझे लोग याद रखें। करेक्ट। और मैं वही करूं जो ये स्क्रिप्ट करवा रही है और करवाना चाहती है। अब मैं ही राइटर था तो स्क्रिप्ट में तो फेथ था ही मुझे। Fabulous. And finally, on a parting note, of course, Soham also, brings his own sense of, I would say, quirk to the, because he is also known for going crazy, as we can, keep phrasing it to be. So, what is the kind of professional marriage between you and Soham that, जब आप बात करते हैं brief के बारे में कि ये story है, ऐसा है, how much quirky is too much quirky? And is there a line that you draw with a concept like this? No, you never know that. You have to figure that out. You have to discover it. मुझे जब कुछ लगता था, एक तो स्क्रिप्ट ही होता है बाइबल, स्क्रिप्ट ही आपका लीडर होता है, आपका भगवान होता है। वो आपको बताता है आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। आप में अगर वो अवेयरनेस है, ह्यूमिलिटी है, शार्पनेस है, तो यू विल नॉट गो रॉन्ग इफ़ यू फॉलो द स्क्रिप्ट। इन टर्म्स ऑफ डूइंग जस्टिस टू द स्क्रिप्ट, यू माइट मेक अ रॉन्ग फिल्म। वो राइटर ने ना बहुत क्वर्की चीज़ें कर रखी थी, और जब मैं एज डायरेक्टर अपने आप को लेके आया उस फिल्म पे एंड सोहम एज एक्टर आए, तो हम मोस्टली तो उसके अंदर खेल रहे थे। कुछ चीज़ें मैंने सेट पे इम्प्रोवाइज़ की। जब वो हो रही थी तो मुझे जैसे ये डॉक्टर का कैरेक्टर था, तो मुझे वहाँ पे स्ट्राइक हुआ कि यार ये डॉक्टर है, अगर ये ऐसी सिचुएशन में खुद का इसका शरीर पड़ जाए तो इसको ठीक करना आएगा, तो मैं इसके बॉडी को उस सिचुएशन में डाल सकता हूँ। स्क्रिप्ट में नहीं लिखा है, लेकिन आई कैन डू इट एंड आई कैन गेट अवे विद इट बिकॉज ही इज़ अ डॉक्टर। ये राइटर ने नहीं सोचा, ये मुझे लगता है मैं कर पाऊंगा एज डायरेक्टर। तो ऐसे कुछ इन्वेंशंस और इनोवेशंस, इम्प्रोवाइजेशंस हुए। कुछ चीज़ें ऐसी हुई ऑन लोकेशन, मुझे कुछ क्वर्की ऑब्जेक्ट्स दिखे, कुछ क्वर्की व्हीकल्स मिले, कुछ क्वर्की लोग मिले, तो मैंने उनको हायर किया और उनको फिल्म में डाल दिया। सुपर, राइट। ऐसे इम्प्रोवाइजेशंस मैं करता गया क्योंकि मुझे लगा इस फिल्म का जो डीएनए है वो ऐसा ह्यूमर या ऐसा इम्प्रोवाइजेशन अलाउ करता है। और आपका ये जो सवाल है कि हाउ मच क्वर्क इज टू मच क्वर्क, ये
एडिट पे फैसला होता है। आप वहाँ पे तो उसको जूस करते हो, एंजॉय करते हो कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, राइट और एडिट जो है वो अपना ही एक जानवर है। करेक्ट। वो उसके अंदर इट इज़ ब्रीदिंग लाइफ फॉर्म, और वो टेक ओवर जब करता है पिक्चर को तो वो अपने आप जो है वो फैट को हटाना शुरू करता है और प्योर हार्ट और मसल बच जाता है। नाइस, fabulous, because I also paraphrasing a lot of people I've interviewed earlier कि फिल्में एडिट टेबल पे ही बनती है। आप सारी चीज़ें कर लोगे, सारी चीज़ें आप बहुत फ्लो में अच्छी बुरी सारी आ जाती है, बट फिल्में फाइनली एडिट टेबल पे बनती है। होता होगा बहुत लोगों के लिए यही सही। मैं ऐसी किसी फाइनलिटी में नहीं मानता। राइट। मैं मानता हूँ कि इवेंचुअली हम सब ना ये एक बड़ा सर्कस है फिल्म, बड़ा तमाशा है, राइट, और हम सब जो है ना इसका एक हिस्सा बन जाते हैं। राइट। और राइटर और डायरेक्टर भी, अब राइटर कह सकता है यार हमारे बिना तो पिक्चर ही नहीं है, स्क्रिप्ट के बिना पिक्चर ही नहीं है, राइट, जो कि सही है। और एडिटर कह सकता है कि एडिटिंग ही डिसाइड करे कि बाहर क्या आएगा, करेक्ट, तो यही फिल्म बनाती है। बिल्कुल। बट आई थिंक इन द एंड राइटिंग और राइटर, डायरेक्टिंग और डायरेक्टर, ये सब एक छोटा हिस्सा बन जाते हैं इस बड़े तमाशे का। और वैसे ही एडिटिंग जो है वो भी उसका हिस्सा बन जाती है। कोई फाइनलिटी नहीं है। एडिट में भी ऐसी 100 चीज़ें होती हैं जो निकल जाती हैं पहले और फिल्म रिलीज होने से 3 दिन पहले वापस आ जाती हैं। right, होता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि समझ में आता है नहीं कुछ बात थी उसमें। तो ये फिल्म बनती है अपनी किस्मत से, बिल्कुल, और कोई नहीं बना सकता। Fabulous, Girish. Thank you so much. It was such a pleasant conversation. I cannot wait to watch the film, and I'm sure that's the feeling everybody has likewise. Finally, और कुछ नहीं तो नई चीज़ें देखने के लिए सब interested होते हैं। कम ज़्यादा doesn't matter, but people are interested. So thank you so much. Thank you. Yeah, you asked really nice questions. Thank you. I had a good time. Appreciate. Thank you. Thank you.